all know what happened and what are you fighting. You have been fighting for over a decade now, but still we would like to know from you what exactly happened that day on the set. I'm not going to repeat the same thing over and over again. I've already repeated a million times. If you guys want, y'all can take cutouts from other channels because I'm honestly tired. Me repeating the same story will not make it more authentic than it was 10 years ago, first of all. And point being, I was harassed, I was attacked by the Manse party, and all this was done in tandem with Nana Patekar, Ganesh Acharya, producer Sami Siddiqui, and what's the fourth guy's name? Rakesh Sarang, the director of the film. These guys were involved in making me go through this hell, and even today, nobody has condemned their actions from the film industry, and many big stars, including Rajnikant and Akshay Kumar and Shahid Kapoor, and these people continue to work with Ganesh Acharya and Nana Patekar. My question is no, you cannot do that. Somebody who's gotten away legally by harassing me, sending goons to attack me, you cannot work with that person and rub it on my face. Where I had to walk away from the industry out of fear, trauma, emotional and psychological, trauma. I had to walk away and I could not do movies because I was afraid to be on a movie set because of all this horrendous stuff that went on. Have you all ever experienced being attacked by an angry mob? How many people over here have experienced being attacked by an angry mob? A mob lynching. How many of y'all have been a part of a mob lynching? None of y'all. You do not know how horrendous that situation is. You don't know if you're going to come out of it alive. They were breaking our windshields, our car. One guy was jumping on top of the car. My mom and dad were inside the car. Do you know how horrendous it is to see your parents in a situation which they're not even supposed to be in? I was sitting there and thinking, what if I'm going to lose my parents tonight? I was worried if you're going to go to the hospital or are we going to go home? So after all this, these big stars, are you soulless and conscienceless? Does it not matter at all? You want investigation? How much investigation do you want for you to condemn these actions? Manse has been attacking the film industry for a very long time. They themselves came and spoke that we will get Tanushi Datta out of the city, we will get her out of the industry. तो इस पे तो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने खुद ही बोला वो क्या कर रहे हैं. पूरा मीडिया में रिकॉर्ड है. नाना पाटेकर और राज ठाकरे की दोस्ती थी उस वक्त. उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी. इस क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको? आप बताइए ना. ये बहाने हैं आप सब लोगों के. You don't want to stand up for what's right and you want to keep supporting criminals. I'm not saying that come out with all your secrets of what happened to you and what happened to this thing. Just stop working with them. You don't want to tell what happened to you. Maybe nothing happened to you. And that's why you're not even compassionate about anybody else who's speaking their truth. Maybe nobody harassed you ever in your life. Absolutely fine. But if somebody is saying something, at least have the heart to listen to that person. I went to the producers and the Actors Association and I got no help from there. What's the point of creating such fake, bogus associations if the associations also don't do anything for you? Just because this guy goes around sucking up to big actors and getting small roles in their movies, stop. Don't you have don't you have to show your face to God someday in life, or are you not even concerned about that? Stop working with these people. It's been almost 10 years now. You've been fighting the battle, but what prompted you to again come up and speak about it? What exactly happened? Well, I came to India for a holiday, and I, got this response from the media. A lot of people wanted to speak with me. Ki, why have you been away? And last 8 years, में all kinds of gossip about me, malicious gossip, in print, on YouTube, behind closed doors. ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, this and that. I wanted to set the record straight.
तुम खुद अपने आप मनगढ़ंत कहानियाँ बनाओ, पीपल, मीडिया, एवरीबडी, तुम मुझसे ही सुन लो क्या हुआ। मैंने 10 साल पहले बोला था, और 10 साल उसके बाद और भी कई चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। मेरे आध्यात्म की तरफ मैंने रुख किया, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो एक जर्नी थी मेरी लाइफ की, जिसकी वजह से आज मैं खड़ी भी हूँ आपके सामने, और क्लैरिटी से, शक्ति से बोल भी रही हूँ फिर से अपनी कहानी। जो जंग मैं बहुत पहले छोड़ के जा चुकी थी, बिकॉज आप नहीं लड़ सकते अकेले। आप बोलते रहो एक ही चीज़, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, सारे बता तो दिया, तुमने क्या किया सुन के। जब रिजल्ट नहीं आता है तो यू कैन कीप वेस्टिंग एनर्जी टॉकिंग ना। आई रादर वांटेड टू कंजर्व माई एनर्जी एंड फोकस ऑन माई ओन पीस, माई ओन वेल बींग, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो ये सारे इंटरव्यूज़ चल रहे थे, और किसी ने मुझे पूछ लिया कि हमारे देश में मी टू मूवमेंट क्यों नहीं होता। तो मैंने बोला मी टू मूवमेंट कहाँ से होगा? 10 साल पहले जब मैंने कंप्लेन की थी उसका क्या हुआ? मुझे जस्टिस मिला? सब तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। लोग भी काम कर रहे हैं इन लोगों के साथ। उसको पहले मैटर सॉल्व करो, फिर मी टू शी टू बोलना। यहाँ पे इंडिया में ना सबको आदत है, अमेरिका में जो भी होता है उनको कॉपी करना है। यहाँ पे वहाँ के कपड़े कॉपी करने, वहाँ के हेयर स्टाइल कॉपी करना है। वहाँ मी टू हुआ तो यहाँ भी सबने शुरू कर दिया। तुम हो क्या मी टू के लायक? वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम और वहाँ का जो कम्युनिटी है, वहाँ की अवेयरनेस, सोच और विचारधारा मी टू सिस्टम, मी टू मूवमेंट को सपोर्ट करती है। वहाँ के उस देश में ये मूवमेंट तब हुआ जब लड़कियों ने सामने आके बात बोलनी शुरू कर दी। जब तक उन्होंने बोली नहीं थी तब तक सारा कुछ ढका हुआ था, लेकिन जब उन्हें बोलना शुरू कर दिया पूरे का पूरा पहाड़ गिर पड़ा। लेकिन हमारे देश में लड़कियां आदि युग से बोलती आ रही हैं, बोलती आ रही है, बोलती ही आ रही है, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो। तुम लोग लड़कियों को ही प्रॉस्टिट्यूट बना देते हो कि यार तो ये ऐसी होगी, यार तो वैसी होगी, झूठ बोल रही होगी। सबसे पहला रिएक्शन हमारे देश में जब भी कोई लड़की कुछ भी कंप्लेन करती है, ये तो मैं अभी हरासमेंट की बात कर रही हूँ, असॉल्ट भी होते हैं, अब्यूज़ भी होते हैं, और कितनी सारी चीज़ें। एक लड़की अगर आके किसी पर, किसी आदमी पे ये भी आरोप लगा लेना कि इसने मेरी कोई चीज़ चुरा ली, उस पर भी सबसे पहले डाउट उस पर फेंका जाता है कि लड़की सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग मीटू के लायक नहीं हो, तुमसे नहीं होगा मीटू यहाँ पे। तो ये अमेरिका को कॉपी करके हमको मीटू करना चाहिए। तुम अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जहाँ पे लड़कियों को लगेगा कि हाँ अगर हम आके कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ निकलेगा असर। यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पहाड़ टूट के गिरना चाहिए, हिला तो थोड़ा सा हिले, एक आध कंकड़ पत्थर तो गिरे। यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ वैसे ही फिक्स रहता है, तो कौन आएगा बोलने के लिए? मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं अमेरिका में रहती हूँ, मेरे को वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल चुका है, मैं वहाँ की रेसिडेंट हूँ। अभी यहाँ पे हूँ, छुट्टियाँ मना के चली जाऊँगी। वहाँ पे मेरी लाइफ है, वहाँ पे मेरी जॉब्स है, वहाँ पे मेरी इनकम है। मैं आऊँगी फिर से नेक्स्ट ईयर छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये बॉलीवुड वाले मेरे साथ काम करें ना करें, लेकिन जिन लड़कियों को आप बोल रहे हैं कि आगे आके आप बोलो, उनको फ़र्क पड़ता है, बिकॉज उनकी पूरी लाइवलीहुड यहाँ पे है, उनकी सोसाइटी यहाँ पे है। आप समझ रहे हैं? तो ये बस बोलने की बातें हैं, आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जब कोई इंसान कंफर्टेबली बोल भी सके। और सुनो, सुनो बस, फिर डिसाइड करो। यहाँ पे सुनते ही नहीं है लोग, पहले ही अजीब सा कुछ, अजीब सा कुछ थ्रो कर देंगे आपके ऊपर। माइंडलेस आर्ग्यूमेंट्स हैपन इन दिस कंट्री। व्हाट्स गोना हैपन? सो वहाँ से फिर बात शुरू हुई, मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो सारा वायरल हो गया, एंड आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं, तो मूवमेंट आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, मैं नहीं, मैं छुट्टियाँ मनाने आई थी। जैसे जैसे कि आप जैसे इंसिडेंट हुआ था 2008 की बात है, हम की तब हमारे बाला साहब ठाकरे भी मौजूद थे। तो क्या उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट, या फिर जैसे अपने आपने कहा मन से काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, नाना पाटेकर भी उस पार्टी में इन्वॉल्व थे, क्या बाला साहब ठाकरे की तरफ से भी कुछ हुआ था आपके केस के मैटर को लेके? क्या उन्होंने भी कुछ जैसे आपने कहा कि आपके मन से और बाला साहब ठाकरे एक पार्टी नहीं है। या बट जैसे बाला साहब ठाकरे भी मौजूद थे, हमने सुना कि उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था? नहीं नहीं नहीं, बाला साहब ठाकरे की डेथ बहुत पहले हो चुकी है। व्हाट आर यू कनेक्टिंग? मन से पार्टी इज़ डिफरेंट, शिवसेना इज़ डिफरेंट, दोनों को जोड़ क्यों रहे हो? जब हमने ऐसा सुना कि उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था आपके केस में, राज ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट था, मन से उनकी पार्टी है ना। बाला साहब ठाकरे की वाला क्या, तो कहीं से कुछ भी लाते हो। मन से इज़ राज ठाकरे, उनकी बात करते हैं, यहाँ वहाँ से लोगों को मत लाओ। तो क्या आप जैसे अभी
कि आपने कहा राज तोड़फोड़ कौन करता है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे बॉम्बे में? मनसे करती है ना, तो मनसे की बात करते हैं, राज ठाकरे की बात करते हैं। बाल ठाकरे को क्यों ला रहे हो? राज ठाकरे को बाल ठाकरे की कुर्सी चाहिए थी, बेचारे को मिल ही नहीं, उसके बेटे को मिल गई। तो अभी उसके दिल में अभी उसको प्रूव करना है पूरी दुनिया को कि मैं भी लायक हूँ और काबिल हूँ। नालायक जब अपने आप को लायक प्रूव करने की कोशिश करता है ना, तो यही होता है तोड़फोड़। वो हर जगह अपने जैसे गुंडों को उसने जुगाड़ किया है अपनी पार्टी बनाने के लिए, और अपने गुंडों को हर जगह भेजता है तोड़फोड़ करने के लिए। जिसको भी कहीं भी तोड़फोड़ करवानी होती है, ये मनसे को कांटेक्ट करते हैं। उसको कुर्सी नहीं मिली बाला साहब ठाकरे की, तो आज उसको तकलीफ हो रही है, आज भी उसको तकलीफ हो रही है कि मुझे लीडर क्यों नहीं मानते, मुझे सरकार राज बनानी है। नहीं बनाएंगे, कोई तुमको लीडर नहीं बनाएगा, सरकार राज नहीं बनाएगा। लीडर वो होता है जो अपने से जो कमज़ोर हैं उनकी सुरक्षा करता है, औरतों की सुरक्षा करता है, औरतों पर दबाव नहीं डालता, औरतों की गाड़ियों पर औरतों के ऊपर अटैक नहीं करता। वो लीडर नहीं होता है। और नाना पाटेकर को हीरो बनना था, बेचारे को हीरो किसी ने नहीं बनाया। सब हीरो बन गए उसके आसपास और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही रह गया। तो उसको हीरो बनना है तो वो क्या करता है, लड़कियों के साथ मिसबिहेव करता है, बुली बिहेवियर, इंटिमिडेशन बिहेवियर, क्योंकि उसको हीरो बनना है। कोई लड़की, कोई हीरोइन उसको भाव नहीं देती है हीरो के हिसाब से। हीरोज़ को कितना भाव मिलता है, सारी लड़कियां मुस्कुरा के आसपास घूमती है, इसके आसपास कोई नहीं घूमती है। तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, उसको हीरो बनना है तो लड़कियों को परेशान करके, उनको इंटिमिडेट करके। अच्छा, परेशान नहीं हुई तो मनसे के साथ हाथ जोड़ लिया, एक नालायक और एक हीरो बनते बनते रह गया। दोनों ने हाथ जोड़ लिए साथ में, तो यही तोड़फोड़। और मेरी मत मारी गई थी, मेरी किस्मत भी फूटी हुई थी कि मैं उसी सेट पे, मैं वहाँ पे हूँ। मैं कहीं और होती तो कोई और लड़की होती, किसी और लड़की के साथ ये होता। हीरोगिरी ये हीरोगिरी के लक्षण है। आपको हीरो बनना है और लीडर बनना है। आपके हीरो जैसे कोई गुण नहीं है आप में। हीरो वो होता है तो हीरोइन को बचाता है। हीरो वो होता है जो गुंडों से हीरोइन को बचाता है। ये नहीं कि गुंडे बुलाता है हीरोइन के ऊपर मारपीट करने के लिए। कैसे? तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। Tanushri, when this whole incident happened, you were at the top of your career and leaving all that behind and moving away. How difficult was it for you and your family? इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ हम गाड़ी में थे, इस तरह का इंसिडेंट हमारे साथ हो गया, तोड़ फोड़ हो गई। मेरी सिस्टर घर पे थी, उसकी तो आप हालत सोच रहे होंगे, वो उस वक्त कॉलेज में थी। वो देख रही है टीवी पर उसके माँ बाप और बड़ी बहन तीनों गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं, और एक इतनी गंदी पार्टी जो बसें जला चुकी है, इतना नुकसान कर चुकी है, ये अटैक कर रही है। और उसको तो लगा कि शायद वो आज अपने परिवार को ही खो देगी। उसने मुझे आज सुबह मेरे से बात की, दीदी जब भी ये इंसिडेंट की बात निकलती है ना तो मेरा दिल दहल जाता है। बोली दीदी तुम तो वहाँ पे थे, तुम लोग तीनों गाड़ी सेट पे थे, मैं तो घर पे थी। तुम मेरी हालत सोचो, मुझे पता नहीं है कि तुम लोग घर लौटोगे कि नहीं। छोटी बहन मेरी, वो उस वक्त फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में थी या कुछ, तो भी उसकी हालत आप सोचिए। पूरे हमारे फैमिली में ना इस इंसिडेंट ने दहशत मचा दी है। सॉरी, हाँ, जस्ट कट इट डाउन। आज भी जब ये टॉपिक निकलता है, मेरे पेरेंट्स दे स्टिल रिमेंबर व्हाट हैपेंड। वो छोटे शहर के लोग हैं, वो अपने इस मुंबई की चकाचौंध वाली नगरी के लोग नहीं हैं। दे आर नॉट फ्रॉम दिस सिटी हाई फाई, नहीं। हम सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे जगह से हैं। मैं हीरोइन बन गई हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल गई, इस ग्लैमर की दुनिया में, ग्लैमरस लाइफ में मैं आ गई। लेकिन हमको आदत नहीं है ये सब चीज़ों की। कैन यू इमेजिन व्हाट दे मस्ट हैव गॉन थ्रू? हरेसमेंट की बात करें, abuse की बात करें, तो ये ज़्यादा केसेस हम बॉलीवुड में ज़्यादा पाए जाते हैं। और लोग अभी भी जो न्यू कमर्स आते हैं बेचारे बहुत चुप रहते हैं। और आपको पर्सनली क्या लगता है कि ये कब ख़त्म होगा और बॉलीवुड सेलिब्रिटी कब बोलेंगे? जैसे अभी आपके केस में और कास्टिंग काउच को लेकर भी बहुत सारे किस्से होते हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना बॉलीवुड चाहेंगे? में मीटू की बात स्टार्ट हुई थी, there were severe actions, people lost on important roles, important jobs. Do you think the same will happen in Bollywood? आई वॉन्ट इट टू, दिस विल बी द प्रेसिडेंट। अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। इज एज सिंपल एज दैट। नाना पाटेकर जैसा चिंदी चोर को अगर तुम गिरा नहीं सके
तो तुमको लगता है तुम बड़े बड़े एक्टरों को, बड़े बड़े डायरेक्टरों को, किसी को भी गिरा सकते हो? मी टू मूवमेंट में अच्छे अच्छे दिग्गज हॉलीवुड के, हार्वी वाइंस्टाइन, उसने ऑस्कर्स जीते थे, जो वहाँ के नेशनल अवार्ड्स और इसके बराबर, उसके भी ऊपर की बात है। जो हॉलीवुड मूवी होती है वो पूरे दुनिया में जाती है। हमारी मूवीज़ सिर्फ हिंदुस्तानी देखते हैं और दूसरे देशों में जो हिंदुस्तानी सेटल्ड है वो देखते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ पूरे देश में सैकड़ों लैंग्वेजेस में डब होके लोग देखते हैं। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो वहाँ का अगर सबसे टॉप प्रोड्यूसर था जिसने कितने ऑस्कर्स जीते थे, अगर उसको गिराया गया, और यहाँ पे एक चिंदी नाना पाटेकर को अगर कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो लानत है, लानत है हमारे देश पर। ये चिंदी चोर है कंपैरिजन में। ये बड़े एक्टरों के आड़ में अपना करियर चला रहा है। इसकी खुद की कोई पोजीशन नहीं है। रजनीकांत ने इसको काला नहीं दी होती तो इसको कोई नहीं पूछता। अक्षय कुमार ने उसको वेलकम और वेलकम बैक और ये सारी पिक्चरें नहीं दी होती, उनको कोई नहीं पूछता। शाहिद कपूर गणेश आचार्य के साथ काम नहीं करेगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा। इनकी औकात नहीं है। ये इन बड़े स्टार्स के पीछे छुपकर इनकी औकात बनती है। तो अगर ऐसे लोगों को हम नहीं गिरा सकते और गिराना नहीं चाहते, तो ये तो मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि गिरा नहीं सकते, हिल तो गए हैं, लेकिन उनको नुकसान भी होना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान को आप बोलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये गलत है, आप वापस नहीं करेंगे, और दूसरों को आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये गलत है, आप नहीं करेंगे, तो चोर को सिर्फ धमकी दे के तुम भेज नहीं सकते हो कि भाई चोरी मत कर बेटा, वो फिर आके कहीं और चोरी करेगा। उसको लॉकअप में बंद रखो, उसको सज़ा दो, तो उसको थोड़ा दिमाग में आएगा कि अरे चोरी करूँगा तो फिर सज़ा हो जाएगी मुझे। तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। और ये रिवेंज नहीं होता, ये this is an act of compassion. If you want to correct someone, if you really want to help someone, you will have to discipline them. And the only way to discipline people is by taking away what means most to them. Because if they have been instrumental in taking away what means most to somebody else, they have to be in the same situation so they can understand what it feels like. So they can also develop compassion in their life. Today I have compassion. You know why? I know what it feels like. मेरी पूरी इस ordeal के through I have developed immense compassion for a lot of people who are suffering various things. क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से मुझे टाइम टू टाइम डिप्रेशन फीलिंग भी हुई। इस इंसिडेंट की वजह से मुझे टाइम टू टाइम मैंने हार भी मानी। इस इंसिडेंट की वजह से टाइम टू टाइम मुझे गुस्सा भी आया कि ऐसे कैसे लोग बर्ताव कर सकते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से मुझे अपने करियर से दूर जाना पड़ा। तो ये भी महसूस हुआ कि जब किसी से आप उसकी लाइवलीहुड छीन लेते हैं या उसका पैशन आप छीन लेते हैं, उसका मकसद छीन लेते हैं, तो उसको कैसा महसूस होता है। सॉरी। ये जो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है ना लाइफ में, इन सारी चीज़ों से मुझ में सहानुभूति आई है सारे लोगों के लिए जिन्होंने अलग अलग चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। तुम एक सिंहासन पे बैठ के तुमको कभी समझ में नहीं आएगा कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं। तुम जाके, जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स करते हैं, जाके थोड़ा बहुत गरीबों से मिल लिए, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींच लिए, थोड़ा बहुत चैरिटी कर दिया, सोशल वर्क कर लिया, कैमरे के 50 कैमरे के सामने, सॉरी 50 कैमरे के सामने सोशल वर्क कर लिया। तुमको महसूस भी होता है इन लोगों का दर्द? तुमको महसूस होता है? नहीं, तुमको महसूस नहीं होगा। तुम तो बहुत बड़े स्टार हो। नाना पाटेकर की बात नहीं कर रही, वो चिंदी चोर है। मैं बड़े स्टार्स की बात कर रही हूँ जो चैरिटी करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह की बातें करते हैं। तुमको पता भी है वुमेन एम्पावरमेंट क्या चीज़ है, और एम्पावर जब कोई होता है तो उसमें शक्ति आती है। तुम कर रहे हो वुमेन को एम्पावर की, सिर्फ बातें कर रहे हो। समझ रहे हो कि लोग दुनिया में कितना सफ़र कर रहे हैं? मुझे आज पूरा समझ में आ रहा है। मैं भी एक बहुत ही कंफर्टेबल जगह में पैदा हुई थी, बचपन से प्रोटेक्टेड। अरे अरे चोट लग जाएगी, अरे अरे, इस तरह का मेरा मैं पली बड़ी हूँ, अच्छे घर में।
इम्पोर्टेड खिलौनों से मैं खेलती थी, गरीबी नहीं देखी मैंने इस तरह का सब ऑल दिस मॉब वायलेंस ये सब नहीं देखा। मैं बस्ती में नहीं पैदा हुई हूँ, बट ये सब देखने के बाद और जब ये भी माहौल आया, जब मेरे काम को मुझसे छीन लिया गया, तो ये भी महसूस हुआ कि जब किसी को काम नहीं मिलता है, मुझे तो छोड़ना पड़ा काम, ऐसा नहीं कि मुझे मिल नहीं रहा था। ये भी महसूस हुआ कि क्या महसूस होता है लोगों को जब आप सुबह उठते हैं और आपके पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, यू डेवलप कंपैशन आउट ऑफ इट। So just because you've not gone through something in life, don't think that you will never go through that in life. Anushri, lastly, your message has reached out loudly to people. So what do you expect now? So action taken against Ganesh Acharya, Nana Patekar and others involved in it. Yes, I absolutely want the industry to boycott them. एंड व्हाट विल यू डू इफ द जैसे सेट द मनसे का अटैक से पहले हुआ था और अब आप डायरेक्टली उनके बारे में बोल रही You've हैं come और out and open, and your sister is working in the industry now. right. She is an actress now. So हैपन अगेन व्हाट विल यू डू? It will not happen again. It will not happen. They cannot touch me. If they even think about it, even that thought will destroy them. Now, they should come in front of me if they are willing to get annihilated. Whether it's Raj Thackeray or anybody. They shouldn't even think about it. They will get destroyed, not me. I have something else supporting me. So I don't have any fear. I mean, you can't live in fear all your life. आज आप बाहर जाओगे, फिसल के आपकी डेथ हो सकती है. You don't need goons to come and hurt you. You can get a heart attack and you can die. The one who's brought me into this world is the one who's going to take me out of this world. जो मुझे इस दुनिया में लाया है ना, वही मुझे इस दुनिया से लेके जा सकता है. और अगर तुम लोगों को लगता है, किसी को भी लगता है कि ये खोखली जो थ्रेट्स हैं ना, ये ऐसे लोग ही दे सकते हैं, उसको भी तो कुछ हो सकता है अचानक से. राज ठाकरे को भी कुछ हो सकता है. बारिश का मौसम है, बिजली गिर सकती है उसके ऊपर, शॉर्ट सर्किट हो सकता है उसके घर में, आग लग सकती है, उनके परिवार वालों को अचानक से कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है. अब किसको पता कहाँ से हुआ, क्या हुआ. नाना पाटेकर को भी कुछ हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबडी. ज़माना ही ऐसा है, कहीं से भी कुछ बिजली गिर सकती है. हु नोज. सो बी केयरफुल. आई एम नॉट अफ्रेड, बट यू शुड बी वेरी अफ्रेड. मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप भी मत सोचो कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता. बहुत कुछ हो सकता है. थैंक यू. Okay. What I'll take 2 minutes. You will finish in 2 minutes, huh? I have to rush. Tanushri, you just take your 2 minutes, huh? हाँ. And then this 20. You want to see if we can do it in